Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the graph series that we have started on this particular channel, the Coding Destination, the question today we are going to solve is find the number of ways from source to destination in a given graph, right? So when you heard about that question or when you hear about this question, the first thing that appears to mind के क्या चीज़ रहने वाली है, कैसा होने वाला है, किस में सोर्स से डेस्टिनेशन पाथ कैसे गिवन है, राइट? सो as we know the graph series going on, so we know कि graph बनने वाला है, but apart from that also you have to judge it, right? So let's see that how we have given a graph. Suppose I'm taking very easy graph, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, right? Let's say 1 से 4 and let's say 1 से 3. So we are given a directed graph. तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है कि मैं 1 से 2 जा सकता हूँ, 2 से 3 जा सकता हूँ, 3 से 4 जा सकता हूँ. मैं या तो 1 से 3 जा सकता हूँ, 3 से 4 जा सकता हूँ, डायरेक्टली 1 से 4 जा सकता हूँ, राइट? सो अगर मैं कंसिडर करूँ कि मेरा जो सोर्स है मेरा 1 है, और जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है 4, राइट? The source that I am being provided with is 1, and the destination that I am given is 4. So I have to find the number of ways from which I can go from 1 to 4, right? So for that, what you have given, okay, first let's manually do it, then we'll see how we can build the logic, right? So first I will go from 1 to 2, from 3 to 4. Is this a valid path from 1 to 4? Yeah, obviously it is. Then I will go from 1 to 3, let's say, 3 to 4, let's say. Yeah, is this a valid path? Right, obviously is, right? Now let's go from 1 to 4 directly. So on total we are having 3 ways. 3 ways we are having through which we can traverse from source to destination. So this is how it works. I hope you understood the question. So what we will be doing in this, so it is one more application of DFS, depth first search. So if you haven't heard about it, guys, I have made a dedicated video, an amazing explanation I have tried to did there. So do watch it out. It will clear all your concepts I have discussed in detail that how to deal with that. So इसमें हम DFS लगाएंगे with a little bit of modification. So what is the modification? We will discuss about that. But DFS लगानी है, कैसे लगानी है, DFS का तरीका क्या है? Okay. So all the graph questions. In each and every graph question or tree question or array question, what you have to do, either you have to traverse to the array, graph or tree or something, you have to traverse, right? So traversal methods will always be there. Without traversal methods, nothing can be like used, right? So either you can go for BFS or DFS, but both the time complexities of BFS and DFS are equal, and DFS is quite simple to be applied, right? So I will prefer DFS. I will also recommend you to go for DFS, as DFS makes it simple and clean and easy to understand, right? So this is how it works. We will discuss about DFS, but before going to the DFS part, I would like to discuss about Newton School, which has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So Newton School is a edtech platform which helps you to build your career in tech specifically. It has a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. And after your course is completed, Newton School is connected to a lot of companies, which helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed. So such an amazing initiative by Newton School. I love this so much. So let's see their website, that how it looks like. So here we are. This is the Newton School's website. So you can see a lot of things are going on. Coding contest, Launchpad, hire from us, apply for free. A lot of companies, they are connected with Google, Lenskart, Meesho, Udaan, Airtel, Snapdeal, lot more. And with the help of these companies, it will help you to get placed, and you have to pay them after you got placed. So isn't it amazing that how interesting this is, that how we can work together with Newton School, and you have to pay after that. So if you are interested, link will be in the description to check it out, and do enroll in it. Like, so this was it for Newton School. Now let's get back to our topic, right? So the thing where we were stuck is how to apply DFS in this, right? So let's again come back to here. 1 to 2 to 3 to 4, right? एक मेरे पास पाथ ये था, एक मेरे पास पाथ था कि 1 से 3 जाऊँ, 3 से 4 जाऊँ, एक मेरे पास पाथ था 1 से 4 जाऊँ, राइट? तो अब मैं जब DFS लगाता हूँ, तो सपोज मैं DFS लगा रहा हूँ 1 से, राइट? तो मैंने 1 से DFS लगाई, तो मैंने 1 को विजिटेड कर दिया, फिर 1 के किसी नेबर पे गया मैं, तो मैं 2 पे गया, 2 को विजिटेड कर दिया, 3 पे गया, 3 को विजिटेड कर दिया, 4 गया, 4 पे विजिटेड कर दिया, राइट? अब मैं नॉर्मल DFS की बात करूँ तो ठीक है, जैसे ही मुझे 1 से, ओके, माई सोर्स इज़ 1, तो मैं 1 से ही शुरू करूँगा, डेस्टिनेशन 4 है, ठीक है? तो मैं काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है? तो मुझे पहली बार जैसे ही 4 मिला, तो मैंने काउंट को 1 कर दिया, राइट? अब मैं क्या करूँगा कि उसके नेबर्स पे जाऊँगा, तो मैं 1 के नेबर पे गया, 1 का नेबर क्या है,
1 का नेबर है पहले 3, 3 पहले से विजिटेड है तो मैं उधर नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर 4, 4 पहले से विजिटेड है तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बट isn't it the violation of the thing that we want to do particularly? Yes it is obviously, right? So how to deal with this? तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि 1 2 3 4, राइट। तो अब मुझे क्या करना है कि जो नोड पे मैं विजिट हो रखा है, मतलब जिस नोड का मुझे पता है कि दिस इज द एंड नोड, जस्ट मार्क इट अनविजिटेड एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। सो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। आई नो बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्लैरिफाई कर दूंगा सबको, राइट। तो एक बार विजिटेड को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। आई स्टार्टेड विद 1, 1 को विजिटेड किया, फिर 1 2 पे गया 2 को विजिटेड किया, 3 पे गया 3 को विजिटेड किया, 4 पे गया 4 को विजिटेड किया, काउंट मेरा 0 था, काउंट को 1 कर दिया। अब मैं क्या 4 के आगे जा सकता हूँ? नहीं, तो मुझे रिटर्न करना है, राइट। तो मैं 4 को रिटर्न कर दिया और 4 का विजिटेड भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं 4 के आगे तो प्रोसेस कर ही नहीं रहा। फिर मैं 3 गया, 3 को भी अनविजिटेड कर दिया, फिर 2 गया, 2 को भी अनविजिटेड कर दिया, ठीक है। अब 1 अनविजिटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1 के अभी तक सारे नेबर्स प्रोसेस नहीं किए हैं। इन द केस ऑफ 4 मैंने सारे नेबर्स प्रोसेस कर लिए थे क्योंकि उसके कोई नेबर ही नहीं थे। 3 के केस में सारे नेबर्स प्रोसेस कर ली थी क्योंकि 3 से डायरेक्टेड कोई नेबर नहीं था, मैं 3 से कहीं जा नहीं सकता था। सिमिलरली इन द केस ऑफ 2, बट इन द केस ऑफ 1 इट इज़ विजिटेड बिकॉज वी हैवंट लाइक explored all of its neighbors. So now it's turn to go to 3. तो क्या 3 विजिटेड है? नहीं, तो 3 को विजिटेड कर दो, ठीक है। क्या 3 से मैं 4 जा सकता हूँ? हाँ, 4 पे गए तो काउंट अब मेरा 1 से हो गया 2। अब मैं 4 पे हूँ तो 4 के वापस सारे नेबर्स एक्सप्लोर करो, ठीक है। नहीं है नेबर्स तो वापस अनविजिटेड मार्क कर दो। फिर 3 को गए, 3 के सारे नेबर्स पे जाओ, नहीं है नेबर्स तो 3 को वापस अनविजिटेड मार्क कर दो। फिर 1 पे जाओ, 1 के सारे नेबर्स पे जाओ, 1 के सारे नेबर्स में भी 4 बचा है, मैं वापस 4 पे गया, नहीं है विजिटेड, मार्केट विजिटेड 3, राइट। तो ये हो गया। अब वापस को सारे नेबर्स चेक किए, कोई नेबर नहीं है, एक्सप्लोर कर लिया, विजिटेड हटाया, इस पे गया, ये नहीं है, इसको अनविजिटेड किया, ख़त्म। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1 के सारे नेबर्स एक्सप्लोर कर लिए इस तरीके से, राइट। सिमिलरली हम अब जैसे, क्योंकि मुझे सोर्स टू डेस्टिनेशन ही बताना था, तो कि मुझे केवल सोर्स पे ही DFS लगानी है, राइट। केवल एक ही एलिमेंट पे DFS लगानी है, तो मुझे 2 3 4 पे आगे DFS लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। सो नाउ लेट्स जम्प दैट हाउ वी कैन राइट द कोड फॉर इट, राइट। तो कोड DFS का ही रहने वाला है, नथिंग एल्स, राइट। आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन दैट आई वांटेड टू गिव, राइट। तो कोड DFS का ही रहने वाला है। तो लेट्स से हम DFS फंक्शन डायरेक्टली ही कॉल कर लेते हैं यहाँ से। तो हमें करना क्या है, हमें रिटर्न करना है काउंट, राइट। तो डेटा टाइप क्या रहने वाला है? इंट। लेट्स से हम इसका क्या नाम दें, काउंट ही नाम दे देते हैं, ठीक है। और हमें एक वेक्टर इंट एडजेसेंसी गिवन है और इंट n गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें आदत हो गई है DFS की, ठीक है, क्योंकि हम 7th वीडियो है ये चैनल पे DF ग्राफ सीरीज़ की, एंड आई होप अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग यू आर गेटिंग प्रिटी मच गुड आइडिया अबाउट इट, राइट। तो वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड n -1 से इनिशियलाइज कर दिया है विजिटेड को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ओके, 2 more things I want in the question, right। int source int destination, राइट। तो सोर्स और डेस्टिनेशन की हमने बात कर ली है, तो एक विजिटेड एरे हमने बना लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे केवल DFS कॉल करनी है मेरे सोर्स पे, नथिंग एल्स, राइट। मुझे सोर्स पे मेरी DFS कॉल करनी है। तो क्या करूँगा मैं, DFS, राइट। DFS हमने कॉल कर दी। DFS में मुझे क्या क्या पास करना है, एक तो एडजेसेंसी, एक n, एक सोर्स, एक डेस्टिनेशन, एक विजिटेड, एंड आई होप इट्स डन। अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस कॉल कर लेंगे, ठीक है। और एक इंट काउंट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, और काउंट को भी पास कर देते हैं, ठीक है ना। और एट द एंड रिटर्न काउंट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन मेरे हिसाब से इतना ही रहना चाहिए। वी विल सी इफ एनीथिंग एल्स वी नीड टू कम अप विथ। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वॉइड बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न टाइप इसका रखा नहीं है, हमें बस फंक्शन कॉल करनी है और हम काउंट की वैल्यू चेंज कर देंगे, राइट। तो फंक्शन का नाम है DFS वेक्टर ऑफ इंट, एडजेसेंसी बना ली है हमने, इंट n बना लिया हमने, इंट स्टार्ट हमारे पास है ही, इंट डेस्टिनेशन भी हमारे पास है,
एंड काउंट भी हमने ले लिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमसे कोई स्पेसिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है। हुई है भैया, हुई है इन टाइम। ठीक है ना। सो ये हमारे पास है DFS का। अब DFS से मुझे क्या करना है कि अब मुझे ये चेक करना है कि कितने काउंट रहने वाले हैं, है ना। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन DFS इज मार्क द पर्टिकुलर नोड दैट वी आर हैविंग इज विजिटेड। तो मैंने क्या किया कि एडजस्ट जो विजिटेड है, विजिटेड ऑफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू 1 कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो है वो विजिटेड हो गया है ना। अब जो मेरा चीज़ है मतलब जो मेरा नोड है वो विजिटेड हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या इफ़ माई नोड इज़ इक्वल टू डेस्टिनेशन, राइट। तो अब मुझे क्या करना है कि इफ़ स्टार्ट इज इक्वल्स टू डेस्टिनेशन, तब मुझे मेरी चीज़ मिल गई है, काउंट प्लस प्लस एंड रिटर्न। इतना ही करना है ना मुझे। क्या करना है, काउंट बढ़ा दूंगा मैं और उसके बाद मैं फंक्शन कॉलिंग को रिटर्न कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तब फॉर ऑटो आई इन एडजेसेंसी ऑफ स्टार्ट, हम भैया स्टार्ट भैया के सारे नेबर्स पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि इफ़ नॉट विजिटेड ऑफ आई, अगर वो विजिटेड नहीं है तब DFS कॉल लगा दो भाई सब में। ठीक है, अगर विजिटेड नहीं है तो DFS कॉल लगा दो। हमें अनविजिटेड करना है कि जब सारे नोड्स उसके प्रोसेस हो जाएं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद हो तो सारे नोड्स प्रोसेस होने के बाद अनविजिटेड करते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंसी आ गया, एन आ गया, स्टार्ट की जगह आई आ जाएगा, डेस्टिनेशन हमारे साथ सेम रहने वाला है और काउंट हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, ये था। और यहाँ पे हमें क्या कर देना, यहीं पे है हमारा मेन गेम, स्टार्ट इज इक्वल्स टू -1 वापस कर देना है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। कोड सिंपल था पर लॉजिक अच्छा था, हमें सोचना पड़ा। ठीक है, तो काउंट नंबर ऑफ वेज ऑफ डेस्टिनेशन को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में काउंट किया जाता है इसको। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। इफ यू हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फॉर श्योर आंसर इट। सो इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, डू लाइक दिस video, subscribe to this channel, and thanks for watching. Also, you can enroll to the Newton School's amazing opportunity that it is providing. Link will be in the description. Thanks.